Hello and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। और अब हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. At the stock markets, Sensex climbs 437 points, Nifty adds 105 points, Rupee weakens 9 paisa against the dollar. Country's economy to grow at 7.5% this fiscal, forecasts SPI research. And Brent crude oil futures dropped nearly $3 to trade at $113.47 a barrel. शेयर बाजारों में सेंसेक्स 437 अंकों की वृद्धि में रहा। निफ्टी में 105 अंकों की बढ़त दर्ज हुई। हालांकि रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की गिरावट में रहा। देश की अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 7.5% की दर से बढ़ेगी, अनुमान दिया एसबीआई रिसर्च ने। और ब्रेंट कच्चे तेल का वायदा मूल्य लगभग $3 की गिरावट दर्ज करता हुआ $113.47 प्रति बैरल पर था। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.8% की तेजी से 437 अंक बढ़कर 55,818 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.6% की वृद्धि से 105 अंकों की बढ़त दर्ज करता हुआ 16,628 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक मामूली गिरावट में रहा। हालांकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.6% की बढ़त दर्ज हुई। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 437 points or 0.8% to end at 55,818 today. The Nifty at the National Stock Exchange advanced 105 points or 0.6% to close at 16,628. In the broader market on the BSE mid-cap index ended marginally lower, but the small-cap index rose 0.6%. The market breadth on the BSE was positive with over 4 advancing stocks for every 3 declining ones. Sectorally on the BSE, the energy index surged 2.3%, oil and gas index jumped 2.1%, IT and the tech indices advanced 1.6% each. Utilities index climbed 1.1%, metal, power and the realty indices added 0.9% each. Telecom index rose 0.8% and the basic material and the consumer durables index moved up 0.5% each. Among the declining indices, the auto index lost 0.7% and the capital goods index fell 0.4%. And we have been joined online by market expert Rajiv Nagpal. Mr. Nagpal, welcome to the program. Thanks. Mr. Nagpal, good news coming out of the stock market after 2 days in red. The markets finally, ended in green today. What are the reasons do you see for major reasons for this? Well, again, it just happens that, when I'm there on Thursday, it's expiry of the options contract. And it is always that short covering plays a part. So my answer is always that, because of the expiry, we saw some short covering. Of course, there was buying in some of the select industrial and which saw a sharp rise like stock like Reliance, and it is a heavy weightage in the index. So at an index level, it was Reliance largely which led to the rise. And also the good point was that for the last part of the market, the market breadth in the mid and the small cap was far better than what it had been for the last 15-20 days. The question is how much will this rally last, given the fact that there are many headwinds in the global markets and we have a domestic news flow which is coming up in terms of RBI policy announcement. So let's see how. I won't say that we are out of the woods, but the fact is there are little shoots where we do see that all the panic which was there due to many reasons, it's not there now, at least for the time being. राजीव जी, अगर हम फिस्कल ईयर को देखें तो जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो क्रेडिट ग्रोथ हो जो 12% के करीब है अप्रैल में, या मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई
स्टेडी है मई में। बहुत सारे इंडिकेटर्स आ रहे हैं। कोर सेक्टर ग्रोथ अप्रैल में 8.4%। सो आपको लगता है कि बाजार इन आंकड़ों का भी संज्ञान लेगा, ऑटो सेल्स में जो रिवाइवल हुआ है उसका संज्ञान लेगा, और हम आशा कर सकते हैं कि आगे मजबूती जो हमने पिछले 2 सप्ताह में सेंसेक्स निफ्टी में देखी, जैसा आपने कहा कि अभी ट्रिकल डाउन हो रही है, ब्रॉडर मार्केट में पूरी तरह नहीं हुई है, लेकिन जो शुरुआत हुई है तेजी की, क्या हम आशा कर सकते हैं कि आगे भी बनी रहेगी? देखिए, आपका पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का, जिसमें आपने कहा कि हमने जो मैक्रो नंबर्स हैं, जो काफी डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव है, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं, वो पॉजिटिव आएंगे। इट इज जस्ट दैट दे आर बीइंग अनाउंस्ड नाउ द पॉजिटिव। उसमें से एक जो डेटा पॉइंट आपने कहा ऑटो का, तो 21 और 20 के जो नंबर्स हैं, हम उनको इस टाइम अप्रैल और मई में से काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप YOY कंपेयर करेंगे तो वो कंपेरेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट लास्ट ईयर अराउंड द सेम टाइम इन मंथ्स में वी हैड पार्शियल लॉकडाउन, डेल्टा वेव वाज एट इट्स पीक एंड बहुत जगह ट्रबल थी, और बहुत जगहों पर फैक्ट्रीज 20 में तो बंद ही थी, 21 में भी काफी जगह डिसरप्शन थे। सो नंबर्स एक्चुअली YOY नंबर्स कंपेरेबल नहीं है, बट इवन ऑन मंथ बेसिस अगर आप देखें तो फेब से द ट्रेंड इज फार बेटर देन व्हाट इट वाज एक्सपेक्टेड, बट इट्स लार्जली बिल्ट इनटू द प्राइसेस। सो कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज आपका एलिमेंट जो कि एक फ्रेश रैली को ट्रिगर करते, ऐसा मुझे नहीं लगता। एंड सेकेंडली देखिए, उससे ज्यादा जो 2 चीजें बड़ी जो मार्केट के लिए होती हैं, वो एक तो लिक्विडिटी, दूसरा है अर्निंग। जहां तक लिक्विडिटी की बात है, FIs आर स्टिल सेलर अक्रॉस द ग्लोब, इक्विटी क्लास हैज टेकन अ बीटिंग, और गिवन द US फेड स्टांस, कल से उन्होंने अपना जो बैलेंस शीट रिडक्शन का प्रोग्राम है वो शुरू करा है, कि वो थोड़ा सा वो अभी लगता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसको अभी सेटल होने में, मार्केट को डिस्काउंट करने में। तो ट्रिकल डाउन कितना होता है, हमें मे बी देखिए बाय द टाइम नेक्स्ट वीक हो शायद और थोड़ा सा रह जाए, बट अभी हेडविंड ज्यादा है और टेलविंड्स कम है, और वैल्यूएशन भी बहुत कोई आप इस करेक्शन के बाद भी कोई चीप टेरिटरी में नहीं आई है कि आप किसी भी पैरामीटर से देखें। सो आई थिंक थोड़ा सा इट वुड बी प्रीमेच्योर टू बिकम थिंक दैट एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड, करेक्शन खत्म हो गई है और चलिए एक नई रैली की तरफ चलते हैं। तो इन्वेस्टर्स क्या करें इस सिचुएशन में, जहां आप कह रहे हैं कि अभी और भी गिरावट की संभावना है बाजार में? देखिए, इन्वेस्टर को अगले हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में क्या होना है उससे कोई सरोकार नहीं। उनको सिर्फ ये देखना है कि उनके जो स्टॉक जो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रखे हैं, दे आर ऑफ गुड क्वालिटी, एंड उनके जो बिजनेसेस हैं वो ऐसा नहीं हो कि उनके बिजनेसेस स्ट्रांग नहीं हो, बहुत ज्यादा सिक्लिकल इन नेचर नहीं हो, वो देखना है। बाकी डे टू डे प्राइस तो या प्राइस मूवमेंट या शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट इज मोर इफेक्टिव, more to be taken into account by the traders, and for traders entirely either it's a bullish bearish market, he has to hone his skill of do the right trading skill set. तो अगर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अपना SIP जारी रखे, जो इस टाइम जो अगर आप रिव्यू करेंगे पोर्टफोलियो, तो कई लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये करते हैं कि वो एक अगर 100 रुपए पे लिया शेयर 50 होगा तो एवरेज करते हैं, दैट इज समथिंग हैज टू बी अवॉइडेड कम्प्लीटली। और अगर आपके कुछ शेयर ऐसे हैं जो आपको लगता है आपने गलत डिसीजन ले लिया था, पोर्टफोलियो रिव्यू करने के साथ साथ आपको रिव्यू करना है अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो दिस टाइम ऑफ द इन मार्केट कंडीशन इट्स गुड टू रिव्यू योर थॉट प्रोसेस कि आप क्यों स्टॉक लिया था, और अगर आपको लगता है कि आपने गलत लिया था तो लॉस बुक करिए, हट जाइए, और डोंट फाइट द मार्केट एंड डोंट टेक हाई एक्सपोजर, क्योंकि 2 दिन का इंडेक्स चलना है या 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता चलने में भी पिछले अक्टूबर से ऐसा कम से कम चौथी बार हो रहा है कि इंडेक्स बहुत जोर के नीचे गिरा है, उसके बाद इंडेक्स चल गया, लेकिन जो स्टॉक्स हैं स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप के, वो अभी भी दे आर कंटिन्यूसली करेक्टिंग और धीरे धीरे करके नीचे आते हैं। सिर्फ यही फर्क होता है कि मंदी वाले दिन वो 6% गिरते हैं और जिस दिन तेजी होती है उस दिन शायद वो 0.5 और 1% बढ़ जाते हैं, दैट्स इट। For an investor, it's time to review his not only portfolio but the thought process and the decision-making process which he follows while he is buying the stock.
राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत विश्लेषण और आपकी सलाह के लिए। श्रोताओं, ये थे बाजार विशेषज्ञ राजीव नागपाल, जो बाजार के आज के प्रदर्शन पर हमसे बात कर रहे थे। और स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर एसपी शर्मा है। डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि अगर हम बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी क्या स्ट्रेंथ है, कौन से फैक्टर्स आपको लगता है डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लेवल पर अभी बाजारों को एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं? जी सोनू जी, इसमें जो मार्केट्स हैं वो भी कंसोलिडेटिंग वे में है। मैं समझता हूं कि मार्केट्स एक अपना ऐसा एक स्पेस ढूंढ रही हैं जहां पे वो कंसोलिडेट कर पाए, और मार्केट्स ज्यादातर रेंज बाउंड हैं। आपने देखा होगा कि जो बेस्ट बॉटम है वो भी 15,700-800 का हमने देखा, एक बॉटम बनाया था मार्केट्स ने। उसके बाद वापस फिर उन्होंने एनर्जी गेन की और वापस वो 17,000 के आसपास चले गए थे, और उसके बाद फिर करेक्शंस आई। तो जो मीडियन है वो करीबन कोई 16,200 से लेके 16,700 के तक है, लेकिन 17,000 से ऊपर मार्केट्स काफी हेजिटेट करती हैं और वहां पे सस्टेन करने में, जिसके बहुत बड़े कारण हैं, जिसमें एक जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जो रशिया यूक्रेन का युद्ध है जो वो एक मेजर कारण है, और जो इन्फ्लेशन उसके बाद के जो कमोडिटी प्राइसेस से स्टोक्ड, और इन्फ्लेशन ने जो आगे जो चैलेंज क्रिएट किया कि मॉनेटरी पॉलिसी में ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स अपने जो पॉलिसी रेट्स हैं इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये एक मार्केट्स के लिए नेगेटिव है, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्क्वीज होती है और मार्केट्स आगे उस तरीके से उछाल नहीं ले पाती है। तो जो मैं समझता हूं कि मार्केट्स के लिए एक कंसोलिडेटिंग जो एक पॉइंट है, दैट विल बी समवेयर बिटवीन 16,200 से लेके 16,700 के बीच में कहीं मार्केट्स जो है कंसोलिडेट करेंगे। लेकिन जैसे आपने बताया कि चैलेंज एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, और दूसरा इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन एड्रेस हो जाता है, जैसे कि आरबीआई ने भी रेट बढ़ाया है, दूसरे सेंट्रल बैंक्स भी बढ़ा रहे हैं, तो इससे जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो खासकर होर्डिंग करते हैं, उनका जो कॉस्ट ऑफ कैरी है वो इंक्रीज होगा। दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन देयर इन्वेंट्रीज, तो उनको इन्वेंट्रीज छोड़नी पड़ेंगी, जिससे कि प्राइसेस में करेक्शन आनी शुरू होगी और इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में सॉफ्टन होगा। तो डॉक्टर शर्मा, आपको क्या लगता है, अगले सप्ताह ही आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। उन्होंने ऑफ साइकिल तो 0.4% इंक्रीज किया है अपना रेपो रेट ऑलरेडी, और जिसका हम असर कमर्शियल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स पर, लेंडिंग रेट्स पर भी देख रहे हैं, एंड फॉर्चुनेटली डिपॉजिट रेट्स पर भी देख रहे हैं। लेकिन अब आपको अगले सप्ताह क्या आशा है, या क्या आपका अनुमान है, आरबीआई किस तरह का अनाउंसमेंट करेगा? देखिए, अनुमान तो हमारा पॉजिटिव है कि आरबीआई को एक जो नी जर्क रिएक्शन लिया था उसके बाद अभी थोड़ा स्टेटस को में जाना चाहिए, जो क्योंकि अभी रेट इंक्रीज करना उतना फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन बहुत हाई है, और दूसरा अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज हो जाता है तो उसका जो बिजनेसेस के ऊपर खराब असर पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ बिजनेस इंक्रीज होगी, प्राइस कॉस्ट मार्जिन्स डिक्लाइन होंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कम होंगी, जिससे कि एक डैम्पनिंग इम्पैक्ट आएगा जो कि ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे अभी अनुमान जो थे 9% के आसपास थे, और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 8.7 ही आया है। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा टाइम शायद नहीं है अभी और इंक्रीज करने का। अभी वेट एंड वॉच होना चाहिए कि अगर इन्फ्लेशन और सस्टेन करता है आने वाले टाइम में, तो क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मेजर्स लिए हैं, एक्साइज ड्यूटीज कम ही है, पेट्रोल के ऊपर कम की हैं और डीजल के ऊपर कम की हैं, तो इससे पक्के तौर पे इन्फ्लेशन के ऊपर असर आएगा, इन्फ्लेशन सॉफ्टन होना शुरू होगा। तो वेट एंड वॉच का ही हम सजेस्ट करेंगे कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा देखना चाहिए कि किस तरीके से हमारी जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन की ट्रेड ऑफ है उसको कैसे हम कैलिब्रेटेड वे से सेटल कर सकते हैं। But Dr. Sharma, here some analysts might say that, what you're saying, that the central bank should adopt a wait and watch, attitude before going in for a second round of hikes. But the way the inflation has risen in the last few months, in the last, many analysts believe that they have to beat RBI, beat US Fed. They have to take, the rate hikes have to be at till a certain point for the inflation to come down to a certain reasonable level. For it, the inflation to be within, the rate, within the range that the RBI has mandated. Yes, I totally agree that inflation is high and beyond the expectations, but this is not the only way to control the inflation, that you increase the policy rates every time.
because we have to address the inflation through the supply side measures also, like the government is now addressing reducing the excise duties. Second is to increase the production possibilities so that the high commodity prices are addressed with the increased production. That they have already increased the prices, they have already increased the policy rates. That will impact the, as I said, speculators. Prices will come down of the international commodities. But now we have to enhance the production possibilities at the domestic level to increase the supplies, so that supply chains becomes more and more strong and the supply side issues are addressed and inflation is coming down. If you are increasing month after month the policy rates, that will impact negatively, production possibilities will reduce and the prices will again go up. Because of the scarcity of the available production possibilities. जैसा आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव एक अप्रोच चाहिए, और वही हम देख भी रहे हैं कि फिस्कल स्टेप्स भी, जैसा आपने कहा, जहां जरूरत थी एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया, जहां जरूरत थी इंपोर्ट ड्यूटीज को कम किया गया, बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने भी उठाए हैं, एक्साइज ड्यूटी कट किया है, एंड आरबीआई भी अपनी तरफ से जो कदम उठा रहा है. आपको लगता है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ एक इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करने पर भी बहुत बल दिया है श्री दास ने, जो आरबीआई के गवर्नर है? उन्होंने बार बार कहा है कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, और जैसे आपने भी स्पेकुलेटर्स की बात की, तो आपको लगता है कि जैसा अभी कह रही थी अनुभा की, जो इतना हाई लेवल पे पहुंचा हुआ है इन्फ्लेशन, कंफर्ट लेवल से ऊपर पहुंचा हुआ है, तो शायद एक तो अभी और रेट हाइक्स की जरूरत है ताकि एक कंबाइंड इफेक्ट उसका आ सके? देखिए, जो अभी आरबीआई ने रिसेंटली इंक्रीज किया, जो 40 बिप्स पॉइंट इंक्रीज किया था, मैं समझता हूं कि वो एक बहुत ही सरप्राइज था और एक शॉक था, जिसका इफेक्ट मैं समझता हूं कि 40 बिप्स नहीं आया, जिसका इफेक्ट 80 बिप्स तक चला गया, क्योंकि वो एक ऐसा शॉक था जिसने डबल इम्पैक्ट दिया. और इससे क्या हुआ कि जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आने वाले टाइम में कम होगी, क्योंकि लोगों का भी जो झुकाव होता है कि एक्सपेंडिचर करने का, उसके ऊपर डेफिनेटली बहुत कंट्रोल हुआ है, जो कि एक सेंटिमेंटल कंट्रोल है कि आने वाले टाइम में अगर आरबीआई ने और इंक्रीज कर दिया तो ईएमआई और बढ़ेंगे, तो हमें वी हैव टू गो बाय कंट्रोल्स. तो ये एक बहुत अच्छा मेजर था, उसको हम एप्रिशिएट करते हैं. लेकिन अभी जो टाइम है, जैसे सरकार ने कैलिब्रेटेड स्टेप्स लिए हैं, उधर से जो पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी ने भी काम किया है, आरबीआई ने अपना काम ऑलरेडी कर दिया है, तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच में आना चाहिए कि इकोनॉमी कैसे, हाउ द इकोनॉमी इज मूविंग हेड, बिजनेसेस कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे लोगों को लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी कितनी है. क्योंकि अगर लिक्विडिटी को हम सक करते रहेंगे तो उससे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा. लिक्विडिटी स्क्वीज करने का मतलब है कि आप इकोनॉमी को डैम्पन करना चाहते हैं, आप उसके ग्रोथ रेट को डिसेलिरेट करना चाहते हैं, तो जिससे कि प्रोडक्शन ही कम होगी. जब लिक्विडिटी, तो प्रोडक्शन, मैं समझता हूं कि ऐसा कैलिब्रेटेड स्टेप होने चाहिए कि प्रोड्यूसर्स जो है वो अपना एक एडिक्वेट लेवल पे प्रोड्यूस करते रहें, उनका प्रोडक्शन कम नहीं होना चाहिए. अगर उधर से प्रोडक्शन के ऊपर प्रभाव आता है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में तो पॉलिसी हमारी कामयाब नहीं होगी. आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा विराम और फिर वापस आएंगे लेकर मार्केट मंत्र. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी. आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से. लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान. अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग. डायल कीजिए 870-001-4242. नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का रुख करने से पहले बता दें कि अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे कमजोर रहा और $1 की कीमत 77 रुपये 61 पैसे दर्ज हुई. उच्च मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी के खतरे से जुड़ी चिंताओं के बीच एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख रहा. जापान का निक्केई सूचकांक 0.2% के नुकसान में रहा. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी और हांगकांग के हैंगसेंग में 1% की गिरावट रही और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.5% के नुकसान में रहा. हालांकि चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.4% की बढ़त में रहा. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो अंतर दिवसीय कारोबार में यहां तेजी का रुख था. कारोबारी मुद्रास्फीति और आर्थिक गतिविधि पर ताजा आंकड़ों का आकलन लगातार कर रहे थे. फ्रांस का कैक 1% की बढ़त पर था और जर्मनी के डैक्स में 0.8% की वृद्धि थी. हालांकि क्वीन की प्लैटिनम जुबली के उपलक्ष्य में लंदन में शेयर बाजार आज बंद था.
Moving on to the US markets, on Wall Street, key indices ended lower yesterday as investors bet that the latest economic data would do nothing to push the Federal Reserve off track from its aggressive interest rate hiking cycle aimed at taming runaway inflation. Data showed that while US job openings fell in April, they remained at high levels, suggesting continued wage increases, contributing to uncomfortably high inflation as companies scramble for workers. Also, U.S. manufacturing activity picked up pace faster than expected in May as demand for goods remained strong, easing concerns about an imminent recession. Along with the data, a Fed report showed that economy in most U.S. regions expanding at a modest or moderate pace from April through late May, with signs that Fed's efforts to cool demand were being felt. Also, San Francisco Fed President Mari Daly said yesterday she sees half a point interest rate hikes in the next couple of meetings as the central bank battles high inflation, lifting rates to 2.5% as quickly as possible. So the Dow Jones Industrial Average fell 177 points or 0.5% to end at 32,813. The S&P 500 lost 31 points or 0.8% to close at 4,101. And the Nasdaq Composite dropped 87 points to 11,994. आपकी ब्रीफ सी टिप्पणी कि यूएस डेफिनेटली पूरा इंडिकेशन है कि वहां पर बढ़ाए जाएंगे इंटरेस्ट रेट्स. अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कम हो जाता है तो आपको नहीं लगता कि वो भी हानिकारक होता है एक इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए? बिल्कुल हानिकारक होता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें उस हानि से भी ज्यादा अगर हमारी प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आता है तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा. क्योंकि अगर यूएस तो अभी अपना इंक्रीज करेगा, यूएस का तो अभी जो पैटर्न रहेगा आने वाले टाइम में वो सिग्निफिकेंटली अपना जो स्टिमुलस है उसको वापस लिया है और इंटरेस्ट रेट अपने बढ़ाएगा. तो हमें ये देखना है बिकॉज वी आर डिफरेंट फ्रॉम यूएस. हमारा इकोनॉमी जो है यूएस की इकोनॉमी से टोटली डिफरेंट है. वो एक एडवांस्ड इकोनॉमीज है और हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है. वो लगभग कोई $25 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है. तो हमें ये देखना होगा कि हम अपने इकोनॉमिक गति को किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, उसकी जरूरत क्या है. जो यूएस कर रहे हैं हम अगर उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे दैट विल नॉट वर्क टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. वी हैव टू लुक एट सो मेनी अदर थिंग्स कि हमें एम्प्लॉयमेंट को भी मद्देनजर रखना है, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करनी है. जो ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन है उसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है. और जो कॉस्ट ऑफ कैरी, जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस एंड जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको भी ध्यान में रखना है कि हमारे ऊपर इतना प्रभाव ना आए कि हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाए ज्यादा कैपिटल कॉस्ट की बढ़ने की वजह से. इसी से जुड़ी हुई कुछ हमारी अगली खबर है. एसबीआई रिसर्च ने अनुमान दिया है कि देश की आर्थिक वृद्धि की दर मौजूदा वित्त वर्ष में 7.5% दर्ज होगी. ये उनके पहले अनुमान की तुलना में 20 आधार अंकों की वृद्धि है. रिपोर्ट ने कंपनियों के बढ़ते राजस्व और लाभ और प्रणाली में पर्याप्त तरलता के साथ बैंकों के ऋणों में वृद्धि के आधार पर यह आशावादी अनुमान दिया है. कंपनी जगत में वृद्धि मजबूत रहने के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में लगभग 2000 सूचीबद्ध कंपनियों ने अपनी कुल आमदनी में 29% वृद्धि और शुद्ध लाभ में 52% उछाल होने की सूचना दी है. ऋणों में वृद्धि की बात करें तो अप्रैल में विभिन्न श्रेणियों पर आधारित आंकड़ों से पता लगा है कि ऋणों की लगभग सभी श्रेणियों में वृद्धि हुई है. सबसे अधिक वृद्धि 14.7% व्यक्तिगत ऋणों की श्रेणी में हुई और इनका योगदान अप्रैल में दिए गए अतिरिक्त ऋणों में लगभग 90% रहा. इनमें प्रमुख रहे आवास ऋण, ऑटो ऋण और अन्य व्यक्तिगत ऋण. तरलता के विषय पर रिपोर्ट में आशा व्यक्त की गई है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए धीरे धीरे ही अपनी रेपो दर में बढ़ोतरी करेगा, लेकिन ये वृद्धि अधिकतर जून और अगस्त में फ्रंट लोड की जाएगी, जिसके चलते जून में होने वाली आरबीआई की बैठक में रेपो दर में 50 आधार अंकों और नकद आरक्षी अनुपात सीआरआर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी का अनुमान व्यक्त किया गया है. इसमें काफी दर्शाया गया है कि कैसे कॉर्पोरेट जगत में अच्छी वृद्धि हुई है पिछले वित्त वर्ष में, जिसके आधार पर शायद एक कॉन्फिडेंस है कि बाजार एब्जॉर्ब कर पाएगा या इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर पाएगी इस बढ़त को जो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं. देखिए, एक्सपेक्टेशन तो अभी के ये है सबको कि रेट्स इंक्रीज होंगे. दैट्स व्हाई पीपल आर एक्सेप्टिंग के भी होना चाहिए. एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई हैं, लेकिन अगर हम उसको लॉजिकली देखें कि इकोनॉमी के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा, हमने जो ग्रोथ हासिल की है, जो कोरोना ने ग्रोथ इम्पैक्ट की थी
जो डाउंटिंग इम्पैक्ट रहा, जिससे हम कितनी मुश्किल से वापस ग्रो कर पाए, हम वापस अभी 8.9% के ऊपर लगभग ग्रो किए हैं। तो इसको कैसे सस्टेन करना है? भारत को ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ आने से ही हम आगे अपना साइज बढ़ा पाएंगे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तभी बन पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट तभी क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्टेशन के ऊपर चलते रहे कि हमें तो बढ़ाना है तभी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, मेरे ख्याल से वो एक उचित कदम नहीं होगा, क्योंकि ये वो इम्पैक्ट करेगा, ग्रोथ को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा और ग्रोथ काफी इम्पैक्ट होगी, जो कि एक मेजर डिसेलरेशन देख सकती है। You're talking about growth, of course, that India has to focus on growth, but as we see from this SBI report, it has already, made an upward revision, and then we, like at the beginning of the program, we were talking about the data points that have come out. We have had better, PMI manufacturing. We've had GST collections again for the third month in a row. It's, over $1.4 lakh trillion. Their auto sales have increased, and there is also the prediction of good monsoon this year. So all in all, the Indian economy seems to be getting back. In fact, is, more than seem, it is getting back on the track quite a bit. And then combined with that, all the other steps that the government is taking, then it seems to be a, when we look into the near future, things seem to be improving quite a lot. I totally agree with you that economy is now improving a lot, but majorly because of the major base effects also. Now the economy is recovering from the daunting effect of coronavirus. But if you go by the report of Reserve Bank of India, they have already predicted that economy will be in the normal mode by 2035, which we were at before the corona. So economic strength is not that much strong. That also RBI report says a few days back. So we have to calibrate all these developments so that economic growth becomes sustainable at the more than 8% in the coming times, so that our objectives to create employment, our objective to create development like infrastructure development becomes true in the coming times. But as people are expecting that there will be increase in the repo rate, we also know that there will be increase in the repo rate, yes. But we are not accepting that will be a favorable step by the Reserve Bank of India for the trade and industry, considering the 90% of the MSMEs in the Indian economic system. Right, moving on to commodities, global crude oil prices fell today on speculation that Saudi Arabia and other OPEC members may boost crude output to compensate for a drop in Russian production. So the Brent crude oil futures declined $2.82 to trade at $113.47 a barrel. US crude futures dropped $2.81 to $112.45 a barrel. Dr. Sharma, there is a OPEC Plus meeting later today, and like I just said, read the story, that there is a speculation that because of the Western sanctions on Russia, on the Russian crude, Saudi Arabia and other countries may agree to increase their output. Do you think that's going to happen, or will they stand to their, will they stick to the stand and, just keep on modestly increasing the output? I think there will be some adjustment by the OPEC countries, because otherwise crude prices will boil up like anything. So that is needed at this juncture, that they should increase the supply scenarios. चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 434 रुपए के उछाल से 50,887 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। चांदी 918 रुपए की तेजी से 61,776 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना वृद्धि दर्ज करता हुआ $1,852 प्रति आउंस पर था। चांदी भी मामूली बढ़त दर्ज करती हुई $22 प्रति आउंस पर थी। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप आए, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। जी शुक्रिया, थैंक यू। And before we close, a reminder of the headlines. At the stock markets, Sensex climbs 437 points, Nifty adds 105 points. Rupee weakens 9 paisa against the dollar. Country's economy to grow at 7.5% this fiscal, forecast SBI research. And Brent crude oil futures dropped nearly $3 to trade at $113.47 a barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.